Friends, 14th June was really a very sad day in the history of this country. It's very unfortunate that we lost a very promising star, Sushant Singh Rajput. And when I heard this news, it really shook me. It really shook me because he was popular, he was talented, he was doing very well, he had everything that one could aspire for. And despite everything that he had, he took that extreme step because of, when I read from the media, I came to know he took this extreme step because he was troubled with the behavior of some people from the industry. And remember, it is not that it has happened first time. There have been so many cases in the past where very promising careers have been lost primarily because of some mischief of somebody somewhere to an innocent person like Sushant Singh Rajput. And that is why I thought of this program, because I felt that there is a very strong need for all of us to become aware, and more so, it is very important for the young generation to become aware of realities of life. What we have seen in case of Sushant Singh Rajput, remember, those kind of people have always been there on this earth. They have been in the past, they are in the present, and they will also remain in future. What we need to do, we need to become aware. We need to become aware of this fact and prepare ourselves and also educate our children for such kind of situations. Therefore, tomorrow when they are facing the challenges of life, they are able to face those challenges with immense confidence. And that's how this title, friends, Living with Sharks, Yet Growing Tremendously. Now what does it mean? It basically means कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे. हमको ही सीखना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों से किस तरह से डील किया जाए, इस तरह के लोगों से किस तरह से बचा जाए. And that is how this title, friends, Living with Sharks, Yet Growing Tremendously. Now let me tell you at the outset, what do I mean when I say sharks? Now, what do I mean when I say sharks? It basically means there are two kinds of people on this earth. There are people who are supportive, who are helpful, who are nice people. And there are people who are not supportive, not helpful, rather they are leg puller. तो दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में. पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि नाइस हैं, जो कि हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, just to ensure that we are able to achieve everything that we want to achieve in our life. ये लोग हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, हमें हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हर तरह से कोऑपरेट करेंगे, हर तरह से गाइड करेंगे. Now who are the people who will fall into this category? Our parents will fall into this category. And our friends, some of our relatives will fall into this category. And then there is a second category of people. And what is this second category of people? This second category of people comprises of
people who are not supportive, who are not helpful, who are not guiding. Rather, they are all the time trying to pull your legs. यानी कि पहली कैटेगरी में वो लोग जो आते हैं, वो लोग आते हैं जो कि हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं ताकि हम हमारे मकसद को अचीव कर पाएं। और दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो कि अगर हमारा काम बनता भी हो तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे ताकि हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। आई कॉल दीज पीपल एज शार्क्स। एंड वाई डू आई कॉल दीज पीपल एज शार्क्स? आई रेफर देम एज शार्क्स बिकॉज अ mere mention of such a person, ऐसे आदमी के नाम का जिक्र भी किया तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई सच पीपल, इनका नाम भी मेंशन किया तो स्ट्रेस आता है, इनका नाम भी जिक्र भी किया, इनकी याद भी आई तो आदमी को टेंशन आता है, आदमी को तनाव आता है, आदमी को डिस्कम्फर्ट आता है। एंड दैट इज वाई आई रेफर देम एज शार्क्स। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं आपको बता दूं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ये शार्क कौन कौन है, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ दीज शार्क्स दैट वी मीट इन आवर लाइफ। ऐसे कौन कौन से तरह के शार्क हैं जिनसे कि हम हमारे जीवन में मिलते हैं, जो हमें हमारे जीवन में मिलते हैं और हमारे जीवन में हमारे लिए हर तरह की परेशानी खड़ी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये शार्क्स को मैनेज करने के लिए, ये शार्क को हैंडल करने के लिए व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, किस तरह से हमको अपने जीवन को जीना चाहिए ताकि ये जो शार्क्स हैं हम इनसे बच सकें और ये शार्क के बावजूद भी वी कैन ग्रो ट्रेमेंडसली। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। यकीन मानिए ये बिल्कुल संभव है, 100% संभव है कि डिस्पाइट ऑल दीज पीपल दैट वी मीट इन लाइफ, ऑल दीज डिफिकल्ट पीपल दैट वी मीट इन लाइफ whom I refer as sharks, उनके बावजूद भी अगर हम चाहें तो हम हमारे जीवन को बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छी तरह से जी सकते हैं और उसमें ग्रोथ लेके आ सकते हैं। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि जब मैं कोई लाइव प्रोग्राम करता हूं तो मैं हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करता हूं, उनसे पूछता हूं कि आपको आपकी ज़िंदगी में कभी कोई शार्क आई है क्या, या शार्क टाइप का कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है क्या, मैं पूछता हूं और अलग लोग अलग अलग जवाब देते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगता है, पर चूंकि ये हम लोग डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि हमको किस तरह के लोग जीवन में मिलते हैं, और एक बार हम ये समझ जाएं कि हमको किस तरह के लोग जीवन में मिलते हैं तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि उन लोगों को के साथ में कैसे जिया जाए, उन लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, उन लोगों के साथ में किस तरह से बर्ताव किया जाए, उन लोगों को किस तरह से हैंडल किया जाए कि एक राजपूत, एक सुशांत सिंह राजपूत, एक चमकता सितारा इस धरती के हॉराइजन पर फिर भी चमकता रहे। एक उम्दा कलाकार जिसमें बहुत क्षमताएं थीं, बहुत प्यारा था सबका, एवरीबडी लव्ड हिम, एवरीबडी एब्सोल्युटली लव्ड हिम। मैं बताऊंगा आपको इस प्रोग्राम में कि किस तरह से ऐसे लोगों के साथ में डील किया जाए, किस तरह से ऐसे लोगों को मैनेज किया जाए कि आप उनसे प्रभावित होने के बजाय वो आपसे प्रभावित हों और आप अपने कार्य में लगे रहें पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ। तो शुरू करते हैं कि किस किस तरह के लोग हमको मिलते हैं इस जीवन में। अब देखिए, हमको लोग मिलते हैं जो कि लेग पुलर हैं। वी मीट पीपल हु आर डीमोटिवेटर, यानी कि आप बहुत बढ़िया मूड में हैं, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन ये इंसान आपके सामने आएगा और आपको आके बोलेगा, क्या बात है यार, आज तबीयत बराबर नहीं है क्या? आप अच्छा खासा एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, पूरी तरह से तैयार है और आप उस इंटरव्यू को क्रैक करने वाले हैं, आपको मालूम है,
लेकिन ये आदमी सामने से आके आपको बोलता है पर्पसली कि भाई क्या बात है, तबीयत सही नहीं है क्या? एंड व्हाट हैपेंस? यू स्टार्ट लुकिंग विद इन, यू स्टार्ट वंडरिंग, am I not really not looking well? You start doubting yourself, you start questioning yourself, and when you start doubting yourself, when you start questioning yourself, you bring your motivation down. So we meet people who are demotivator, demoralizer, bullying, political, people who are always wanting to play politics, crooked. We meet people who are crooked, sadist. यानी कि कुछ लोग हमको जीवन में ऐसे मिलते हैं जो कि सैडिस्ट होते हैं. सैडिस्ट यानी कि दुखवादी. यानी कि क्या? यानी कि ऐसे लोग मिलते हैं जिनको सिर्फ दूसरों को दुख देने में मजा आता है. सो वी मीट पीपल हु आर सैडिस्ट. वी मीट पीपल हु आर ऑब्नॉक्सियस. ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या है? ऑब्नॉक्सियस का मतलब है वी मीट पीपल who are harmful, who are constantly, who are prepared to do anything to ensure that they harm you because then they enjoy it. We meet people who are hoilod. Now what is hoilod? Hoilod is we meet people who are high on expectation, low on delivery. यानी कि हमें बहुत सारे लोग हमारे जीवन में, और याद रखिए जब मैं कहता हूं जीवन में, इसका मतलब मैं कह रहा हूं सब कुछ. यानी कि आपके ऑफिस में हो सकता है, आपकी सोसाइटी में हो सकता है, आपके इनर सर्कल में हो सकता है, आपके दोस्तों में हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में हो सकता है, लेकिन इस तरह के लोग सब जगह मौजूद हैं. होइलोड, हाई ऑन एक्सपेक्टेशन, लो ऑन डिलीवरी. यानी कि ऐसे लोग जो आपसे तो बहुत उम्मीद करते हैं लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते. वी मीट सच पीपल. वी मीट पीपल हु आर एक्सप्लॉइटर. यानी कि आपकी कोई मजबूरी है, आप परेशानी में हैं, आप दिक्कत में हैं, तो वो क्या करेंगे? वो आपकी परेशानी का, आपकी दिक्कत का, आपकी मुसीबत का फायदा उठाना चाहेंगे एंड दे विल ट्राई एंड एक्सप्लॉइट यू. वी मीट पीपल हु आर मिसगाइडर. आप अच्छा खासा कर रहे हैं और आपको वो लोग मिसगाइड करने के लिए आ जाएंगे. यानी कि अगर आप सही रास्ते पर भी जा रहे हैं तो वो जानबूझकर आपको ऐसा बताएंगे कि आप ताकि अपना रास्ता भूलें और गलत रास्ते पर चले जाएं. रिमेंबर, we have to be careful. We have to understand such people, because unless and until we understand such people, we will not be able to recognize them. And if we don't recognize them, we will not be able to deal with them. And if we are not able to deal with them, then we will become a victim of such people. We will become a prey of such people. And that is what these people are always wanting. Self-centered. We meet people who are cruel. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरी लिस्ट खत्म हो गई? तो मैं आपको बता दूं कि मेरी लिस्ट खत्म नहीं हुई है. मेरी लिस्ट बहुत लंबी है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप भूल से भी ये मत समझना कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं. मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको डराना चाहता हूं. आई एम नॉट शेयरिंग ऑल दिस विद यू because I want to frighten you. Definitely not. I am sharing it all this with you because I want you to be prepared for it. I want you to be prepared for it, and I want you also to make sure that your children, your people, the young generation in your family is also prepared for these kind of challenges. Now let me give you an example. क्यों कहता हूं मैं कि मैं आपको तैयार कर रहा हूं? Why do I say that I am preparing you? अब देखिए, आप एक जगह पर खड़े हैं और सडनली अगर कोई आदमी आपको पीछे से धक्का दे तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप गिर जाएंगे. आप क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि आप तैयार नहीं हैं. और अब दूसरी सिचुएशन, आप एक जगह पर खड़े हैं और एक पीछे से आपका कोई दोस्त आता है और वो आपको आके कहता है कि तुम यहां खड़े हो, देखो मैं तुमको पीछे से धक्का देने वाला हूं. और अब ये आपका दोस्त आपको पीछे से आके धक्का देता है, तो क्या आप गिरोगे? द आंसर इज नो. दिस टाइम यू विल नॉट फॉल. एंड व्हाई यू विल नॉट फॉल? यू विल नॉट फॉल बिकॉज नाउ यू आर prepared. So remember friends, I am sharing all these categories of sharks with you because I want you to be prepared. And why I want you to be prepared? Because once you are prepared,
nothing can go wrong with you. Once you are prepared, you will be able to handle and face each and every challenge on this earth. So what are other categories of people that we meet in life? We meet people who are opportunist, अवसरवादी हैं, मौके की तलाश में हैं. We meet people who are cheat, धोखेबाज. We meet people who are cunning, people with one upmanship attitude. खासतौर से सोसाइटी में या वर्किंग प्लेस में हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनका कि एटीट्यूड वन अपमैनशिप का है. हमेशा उनकी यही कोशिश रहती है, वो सबको ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे ऊंचा हूं. सो पीपल विद वन अपमैनशिप एटीट्यूड. क्या प्रॉब्लम है ऐसे लोगों के साथ में? ऐसे लोगों के साथ में प्रॉब्लम यह है कि जिस इंसान का वन अपमैनशिप का एटीट्यूड होता है वो अपने सामने वाले को हमेशा गिराने की फिराक में रहता है. तो हमको क्या करना है? हमको ऐसे लोगों को समझना है और उनसे बच के रहना है. कैसे बच के रहना है ये हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे. वी मीट पीपल हु आर जेलस एंड रिमेंबर jealousy, I think, was the root cause, in my view, behind the sad suicide by Sushant Singh Rajput. Because within a very short span of time, ये स्टार, ये कलाकार इतना ऊंचा उठकर आ गया अपनी क्षमता के दम पर, अपनी कला के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन के दम पर इतना ऊपर उठकर आ गया कि सिने इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जमे हुए लोगों को ये बात ये बात पसंद नहीं आई. ये बात उनको जमी नहीं. ये उनके ईगो को हर्ट हो गया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि वन अपमैनशिप एटीट्यूड वाले हैं. तो इन्हें क्या लगा, अरे ये कल का बच्चा हमारे देखते देखते ये इतना ऊंचा उठ गया, ये ऐसे इतना ऊंचा कैसे उठ सकता है, हम इसको ऊंचे नहीं उठने देंगे. जेलसी. वी मीट पीपल इन लाइफ जो कि जेलसी से भरे रहते हैं. वी मीट पीपल हु आर शूटर. रिमेंबर द पीपल हु आर बिहाइंड द सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत आर शूटर. They have shot his career. And they have shot his career because of jealousy, one-upmanship attitude and what not. और एक चीज और याद रखो फ्रेंड, जो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ. ये हर दिन हर जगह हो रहा है और कुछ लोग इसके विक्टिम बन रहे हैं. और ये विक्टिम क्यों बन रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल a situation like this, and this is what we are going to ultimately cover in the end of it. We meet people who are blame shifter. वो उनका काम ही ये है, गलती खुद करेंगे लेकिन दोष दूसरों के ऊपर डालेंगे. We meet people who are credit hogger. काम करेगा कोई और मलाई खाएंगे ये लोग. ऐसे लोग मिलते हैं हमको जीवन में. पुशर, जो कि हमेशा दूसरों को पुश करते रहते हैं. काड़ी मास्टर. What is काड़ी मास्टर? काड़ी क्या होती है? काड़ी होती है माचिस की तूली. और माचिस की तूली का क्या काम होता है? माचिस की तूली का काम होता है आग लगाना. तो हमारे जीवन में हम ऐसे बहुत सारे काड़ी मास्टरों को भी मिलते हैं जिनका क्या काम है, जिनका इतना ही काम है कि यहां पर आग लगाओ, वहां पर आग लगाओ, वहां पर आग लगाओ, यहां पर आग लगाओ और सब जगह आग लगाते रहो. क्या करना है? हमको सीखना है, समझना है कि इस तरह के लोगों से कैसे बच के रहना है. बिकॉज ये लोग बड़े शातिर होते हैं, बड़े माहिर होते हैं अपने काम में. आग लगाना, काड़ी मास्टर. डिस्ट्रक्टिव, पीपल हु आर डिस्ट्रक्टिव, उनका काम ये है कि नुकसान करें. हंटर, पीपल हु हैव अ एटीट्यूड ऑफ हंटिंग. उनके लिए जीवन एक शिकार की तरह है और वो हमेशा सुशांत सिंह राजपूत जैसे इनोसेंट कलाकारों की खोज में रहते हैं कि किस तरह से उनको हंट किया जाए. रिमेंबर, एंड आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, it is not happening only with Sushant Singh Rajput, it is happening everywhere. We need to be careful. We need to be careful ourselves, and we also need to ensure that we make our young generation, coming generation also alert about it.
We meet people who are, of course, for some interesting people also, we meet people who are NPD. Now what is NPD? NPD is, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ. एक बार क्या हुआ कि एक घर में एक चोर चोरी करने के लिए घर में घुसा और उसने घर का जो भी सामान था, कीमती सामान था, उसको बटोरा, एक कपड़े में बांधा और अपनी पीठ पर रखकर वो निकलने लगा चुपके से. और जैसे ही वो निकलने लगा, गलती से उसका एक पैर एक बर्तन से टकराया, बर्तन की आवाज हुई और आवाज सुन के जो घर की मालकिन थी उसकी नींद खुल गई. मालकिन थोड़ी मजबूत थी, उसने चोर को पकड़ा और दबोच के उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई और अपने बेटे को जगाती है. बेटे को बोलती है, बेटा जा जल्दी से पुलिस को बुला के लेके आ. चोर नीचे दबा हुआ है, मालकिन उसके ऊपर बैठे चढ़ के बैठी हुई है. बच्चा थोड़ा समय लगाता है तो माँ बोलती है, बेटा जल्दी से जा, जल्दी से जाके पुलिस को बुला के लेके आ. बच्चा बोलता है, माँ जाता हूँ, चप्पल नहीं मिल रही है. तो नीचे से चोर बोलता है, बेटा चप्पल मेरी पहन जा, पर जल्दी से जा, पुलिस को बुला के लेके आ, मेरा दम घुट रहा है. सो वी मीट पीपल इन लाइफ हु आर NPD, नहले पे दहला टाइप. We meet people who are KKK MNW type. Now what is KKK MNW? KKK MNW का मतलब है कुछ का कुछ मतलब निकालने वाले. But remember, so basically we meet people in life of two type. Number one, people who are nice. Number one, people who are good, who are always wanting good of us. Nice people, we do not have to really worry about them. Second category of the people that we meet in life are not so nice people. They are sharks. They are crooked. They are always harming us. We need to learn as to how to handle such people. अब अगर मैं आपसे कहूं तो ये जितने भी लोग हमको मिलते हैं लाइफ में, हम उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है दुखवादी, दूसरा है आतंकवादी, तीसरा है सुखवादी और चौथा है आनंदवादी. सो बेसिकली ये सारे जो लोग हैं, जो हमें जो शार्क्स हमारी लाइफ में टकराते हैं, वो ये 4 कैटेगरी में आते हैं. दुखवादी, आतंकवादी, सुखवादी और आनंदवादी. हमको क्या करना है? हमको दुखवादी नहीं बनना है, हमको आतंकवादी नहीं बनना है, हमको सुखवादी ओके, बट हमको आनंदवादी बनना है. और वो कैसे करेंगे? वो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? सो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन लाइफ टू टैकल दीज शार्क्स? तो देखिए, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं. जितने भी मैंने आपको जो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पीपल जिनका मैंने जिक्र किया है, उनको हैंडल करने के हमारे पास 3 अप्रोचें हैं. पहली अप्रोच ये है पैसिव अप्रोच. पैसिव अप्रोच का मतलब क्या है कि मेरे जीवन में कोई है हु इज एक्टिंग लाइक अ शार्क, हु इज एक्टिंग लाइक समवन हु एक्टेड विद सुशांत सिंह राजपूत. तो पहली अप्रोच क्या है मेरे पास में? पहली अप्रोच ये है पैसिव अप्रोच. पैसिव अप्रोच का मतलब क्या है? लेट इट हैपन. पैसिव अप्रोच का मतलब क्या है? एक्सेप्ट इट मीकली, यानी कि चुपचाप भोली गाय की तरह उसको झेलते रहो, उसको बर्दाश्त करते रहो. इज इट अ गुड थिंग टू डू? द आंसर इज नो. ऑब्वियसली द आंसर इज नो. सो इफ समवन इज बीइंग अ शार्क टू यू, you should never accept it meekly, because if you accept it meekly, remember, outwardly you may appear to be cool, but internally you are disturbed. Internally it is disturbing your mind. Internally it is causing damage to your personality. So that's passive approach. So passive approach suffer in silence. So what you do when you apply passive approach, you accept it meekly, and that means you are suffering in silence. क्या होता है ऐसे लोगों के साथ में? ऐसे लोगों के साथ में ये होता है कि when it comes to the शार्क के सामने तो ये उसको मीकली एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब ये लोग अपने घर पर पहुंचेंगे तो ये वो जो भड़ास है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो तनाव है, वो जो तकलीफ है, वो जो परेशानी है जो कि बाहर झेली है, वो घर पर आके बाहर उसको वॉमिट करेंगे. नॉट ए गुड साइन.
So to be passive to sharks is not a good approach. Second approach what we can do is active approach. Active approach का मतलब क्या है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तेरे साथ ही ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो मैं भी तुझे तकलीफ दिए बिना रहूंगा नहीं. जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज.